رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں. آج بھی ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ. فرمایا کہ حرج کے زمانے میں یعنی فتنہ فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فتنے کے زمانے میں فتنے کے وقت عبادت کرنا میرے طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. اتنی سی حدیث ہے لیکن اللہ اکبر بڑی قیمتی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر بہت ساری گہرائی اور بہت ساری نصیحت، بچنے کی باتیں، بہت کچھ باتیں ہیں اس کے اندر. یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کی شرح کرتے ہوئے عبداللہ البخاری حفظہ اللہ 1.5 گھنٹہ شرح کی اس حدیث کی. 1.5 گھنٹہ شرح کی مسجد رضوان میں. تو اس حدیث کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ ہے کہ حرج کے وقت، حرج کے مطلب ہوتا ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ حرج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے وقت، ایسا زمانہ جس میں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑے ہو، فساد ہو، قتل ہو، اس وقت کو حرج کہتے ہیں. اس وقت کو حرج کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری حدیث میں حرج کا مطلب قتل ذکر کیا ہے. اور اختلاف جب بڑھ جاتے ہیں، جھگڑے لڑائی ہوتے ہیں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں عبادت کرنا، جو آدمی فتنے کے وقت میں عبادت کرے گا وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کیا. ثواب کے اعتبار سے. اسی وجہ سے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مسجد قباء کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو نہیں ہے، فتح کے بعد تو ہجرت ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، لیکن ہجرت کا ثواب ابھی بھی مل سکتا ہے. ہجرت کا ثواب ابھی بھی مل سکتا ہے. جب فتنہ ہو، لوگ فتنے میں ڈالنا چاہیں، اس وقت عبادت میں مشغول ہو جائیے. اس وقت عبادت میں مشغول ہو جائیے تو ہجرت کی فضیلت اور اجر ثواب مل سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ عبادت میں مشغول ہو جائیے، علم، صحیح علم حاصل کرنے میں لگ جائیے، تبھی عبادت کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عبادت، اصل میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العبودیہ کتابی لکھا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، عبادت کا مفہوم ذکر کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قول، فعل، عمل، چاہے باطنی ہو یا ظاہری ہو، ہر قول بولے تو بات، عمل بولے تو کام، اور عقیدہ جو دل میں ہم یقین رکھتے ہیں، تو قول، عمل، عقیدہ چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو عبادت کہتے ہیں. کوئی بھی بات جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے. کوئی بھی کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے. اور وہ عقیدہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے وہ عبادت ہے. عبادت کا معنی ہی یہی ہے.
सिर्फ नमाज पढ़ने को इबादत नहीं कहते हैं, इबादत का एक हिस्सा है ये, एक इबादत की किस्म है नमाज। तो ये बात है, इसी वजह से। और हज्र हिजरत से आया है, हिजरत से, ये हिजरत का हिजरत इलैया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज्र के फितने के जमाने में वक्त में इबादत करना मेरे तरफ हिजरत करने की तरह है। हिजरत कहते हैं अतर्क, हिजरत कहते हैं छोड़ने को। इसी वजह से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा वर्रुज्जा फहजुर, बुतों को छोड़ दो, यानी बुतों की इबादत को छोड़ दो। और हिजरत इसी का नाम है। इसी वजह से सहाबा इकराम अपने दीन बचाने के लिए अपने वतन को, घर बार को, सबको छोड़ दिए। इसी को हिजरत कहा जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का एक माना ये भी बयान किया, अल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु। मुहाजिर वो है जिससे अल्लाह ताला ने जिन कामों से, जिन बातों से रोका है उसको छोड़ दे, वो मुहाजिर है। अल्लाह ने सूद को हराम किया, बंदा छोड़ दिया, तो वो मुहाजिर की तरह है। हर वो गुनाह, हर वो बात, हर वो काम जिससे अल्लाह ताला ने रोक दिया, मना कर दिया, उसको छोड़ देना, ये हिजरत की तरह है। तो हिजरत का मतलब होता है छोड़ देना। तो ये बात है कि जब फितने का जमाना हो तो बंदा इबादत में मशगूल हो जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की तरह उसको फजीलत और अज्र सवाब मिल जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो मुस्लिम की शरह लिखे हैं, वो कहते हैं कि यहां मुराद हर्ज से मुराद यहां फितना है और लोगों का इख्तिलाफ है। आदमी का लोगों का इख्तिलाफ यानी बिदअती, अहले तौहीद गड़बड़ हो जा रहा है। एक आदमी बिदअत सुन्नत इसमें फर्क नहीं कर पा रहा है, इख्तिलाफ हो गया लोगों का मामला, कोई सही मामला कर रहा है, कोई गलत मामला कर रहा है, समझ से बाहर है, वो फितना इख्तिलाफ, उसी को कहते हैं हर्ज। और कहते हैं इतना बड़ा जो सवाब मिलेगा उसकी सबब क्या है? कहते हैं सबब कसरत फज़लिल इबादह फीहे, फितने के जमाने में इबादत करने की फजीलत का सबब यह है कि अन्नन्नासा यगफुलून, फितने के जमाने में लोग इबादत करने से गाफिल हो जाते हैं, इबादत करने से गाफिल हो जाते हैं और उसी फितने में पड़ जाकर के मशगूल हो जाते हैं। मगर कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि उन फितनों से बच जाकर के इबादत में मशगूल हो जाते हैं। तो जब लोग मशगूल हैं और आप इबादत कर रहे हैं तो फजीलत होगी, एक फजीलत होगी। इसी वजह से याद रखिए फितने के जमाने में लोग मशगूल हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े में, बातचीत में, ये वो, कहां क्या होगा, ये सब बात करने में टाइम खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्सईदु मन जुन्निबल फितन, कि खुशनसीब वो इंसान है जो फितने से बचा लिया गया, खुशनसीब वो इंसान है जो फितने से बचा लिया गया। तो इस हदीस में बड़ी इबरत और नसीहत है। फवाइद के तौर पर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब फितने आम हो जाते हैं, बिगाड़ फैल जाता है, तो अल्लाह की इबादत और इताअत बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है फितने जब आम हो जाते हैं। क्योंकि हर तरफ बुराई ने डेरे जमा लिए होते हैं, इसलिए हर शख्स बुराई ही की तरफ रागिब होता है, दिलचस्पी बुराई की तरफ हो जाती है लोगों की फितने के वक्त में, और धड़ल्ले से उसे इख्तियार भी कर लेते हैं बुराइयों को। और ऐसे हालात में अल्लाह की इबादत का करना, बजा लाना और उसके हुक्मों की इताअत करना निहायत फजीलत वाला अमल है। इसे हिजरत मदीना के मिसल करार दिया गया है। उस वक्त हिजरत वाजिब थी और घर बार, जायदाद, कारोबार, वतन छोड़कर एक नई जगह पर जाकर के आबाद होना निहायत मुश्किल काम था उस जमाने में। तो लेकिन ये अमल जितना मुश्किल था उतना ही सवाब भी था, उतना सवाब भी था। यही सवाब फितने के जमाने में इबादत करने वाले को मिल जाए, तो बहुत ही अहम ये काम है। इसी वजह से ये जमाना फितने का है। ये मत समझिए कि फितना आकर के कहेगा मैं फितना हूं, ये भूल जाइए, ये वक्त बड़ा फितने का है। ऐसे वक्त में हमको इल्म और इबादत में मशगूल हो जाना चाहिए। फालतू कामों में, बाहर ज्यादा उल्टे सीधे जगहों पर नहीं जाना,
उल्टे सीधे बातों पर नहीं लगना और बिला जरूरत घर से नहीं निकलना, बिला जरूरत घर से नहीं निकलना, अपना घर में है, मस्जिद में है, इबादत कर रहे हैं, ये सेफ है, सेफ जगह है कि बच सकते हैं। और इस हदीस में 3 बहुत बुनियादी बातें इसमें उभारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इबादत, देखिए फितने से बचाव का जरिया इबादत है। अगर फितने का वक्त है और इबादत नहीं कर रहे हैं, मतलब ये है कि फितने में है। फितने के वक्त अगर बंदा इबादत नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि फितने में पड़ा हुआ है। तो ये बात है। तो उसी तरीके से एक मुसलमान को चाहिए कि गफलत, जब लोग गाफिल हो तो वो इबादत में मशगूल हो जाए। फितने के वक्त लोगों फितने को छोड़ दे, फितनों की जगह को छोड़ दे, फितने वाले लोगों को छोड़ दे और अल्लाह की तरफ बंदा चला जाए, अल्लाह की इबादत की तरफ आए। और ऐसे गफलत के वक्त में, फितने के वक्त में, इख्तिलाफ के वक्त में इबादत की फजीलत इतना है कि हिजरत का सवाब भी मिल सकता है। ये हदीस बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत ही गहराई इसके अंदर है और बचाव का जरिया है। हमको चाहिए कि फितने के वक्त में, फितने के जगहों पर, या तो फितने गफलत के वक्त में हमको इबादत में मशगूल हो जाना, ये किला की तरह है, किला की तरह है, बंदा महफूज हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई है और आपकी तालीम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हर किस्म के फितने से बचाए, इल्म के फितने, माल के फितने और बिदआत के फितने, शिर्क के फितने, रस्म और रवाज के फितने से अल्लाह हमको बचाए। सुन्नत की तरफ हमको दिलचस्पी पैदा कर दे, तौहीद की तरफ दिलचस्पी पैदा कर दे और इबादत की तरफ दिलचस्पी पैदा कर दे, और वो भी इखलास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।